It is exercise 9.3 and question number 20. Solution. Show that product of the corresponding terms of the sequence AR square dash 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 up to AR raised to power n minus 1 and other sequence is given as AR square and AR raised to power n minus 1 form a GP and find the common ratio. ओके, तो इसका प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो जैसे हमने कल किया था, फर्स्ट सीक्वेंस यहां पर लिख लेते हैं हम गैप के साथ, ए, फिर आ जाएगा ए आर, फिर आएगा ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर रेज टू पावर n minus 1. It is first progression. Second progression, you write here A, then capital A, capital R, then A R square and so on. Here you have A R raised to power n minus 1. Okay. Now he is saying product of corresponding terms. So you can write here product of corresponding term. That is equal to A into small a into capital A. So A, capital AR, then AR square, capital AR square, and here you have AR raised to power n minus 1 और सेम चीज कैपिटल में AR रेज टू पावर n माइनस 1. ओके, अब हमें ये शो करना है कि ये जीपी में, सो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म दैट इज AR, कैपिटल में AR अपॉन फर्स्ट टर्म AA, that will be equal to AR square upon AR, कैपिटल में AR. ओके, एंड थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म के साथ भी ऐसा ही करेंगे. तो यहां पर हम देखेंगे कि A से A कैंसिल हो गया और कैपिटल A से ये कैपिटल A. सिमिलरली दिस A कैंसल्स विद दिस वन एंड दिस कैपिटल A कैंसल्स विद दिस वन, और यहाँ पर ये R पावर है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैपिटल R आएगा यहाँ पर. तो लेट अस डू दिस करेक्ट. इट इज कैपिटल R. Here we have capital R. So this will cancel with this power. So we are left with small r capital R. तो आपने देखा कि यहां पर भी स्मॉल r कैपिटल R है, यहां पर भी स्मॉल r कैपिटल R है. तो ये कॉमन रेशियो आ गई आपकी, कॉमन रेशियो. Since common ratio is same throughout, therefore product of corresponding term this forms a geometrical progression. इसने geometrical progression बनाया. तो प्रोडक्ट का ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है. तो आपने देखा कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म. तो ये जीपी बनेगा और कॉमन रेशियो यहां पर आपने कैलकुलेट कर लिया. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है. लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज क्वेश्चन नंबर 21. Find 4 numbers forming a geometrical progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18. So solution. Let B be the first term,
and R be the common ratio. R be the common ratio. Of GP, geometrical progression, under consideration. So he is saying find 4 numbers forming a geometrical progression in which the third term is greater than the first. So third term is greater than the first term by 9, and second term, that is T2, is greater than the fourth term T4 by 18. Okay, these two conditions are given. So we generalize these conditions. T3 is B R raised to power 2, and T1, that is first term, is B plus 9. Here also T2, that is BR, is equal to T4, that is BR raised to power 3 plus 18. So you can take this equation as 1 and this as 2. So you can solve these two equations. You can find the values of B and R from these two equations. And then the 4 numbers will be solve 1 and 2 for B and R. Then required 4 numbers in GP will be first term B, then BR, then BR square and BR cube. That's all. So it will be your answer. From these two equations you will get the value of B and R and put it here. यहाँ पर दोनों तरफ आप R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा बी आर क्यूब इज इक्वल टू बी आर प्लस 9। उस बी आर क्यूब की वैल्यू इक्वेशन 2 में राइट साइड में पुट कर देंगे तो आपके पास आएगा बी आर इज इक्वल टू बी आर प्लस 9R। तो बी आर से बी आर कट जाएगा, आप R की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। So solution. If pth, qth, rth term of GP are small abc respectively, prove that this expression. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने R यूज किया है और स्मॉल ए बी भी यूज किया है, तो आप इनको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म and capital R be the common ratio of the GP under consideration. Okay, we are given that given pth term, that is TP, is A, qth term, that is TQ, is B, and TR is given as C. Okay, so from here TP, so that is A R raised to power P minus 1 is a small a, which implies qth term आपको निकालनी है, that is A R raised to power Q minus 1, which will be B, and this implies A R raised to power R minus 1 is equal to C. तो इसको आप 1 कह देंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 and equation 3. Now consider जो आपको ये प्रूव करना है इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट साइड। सो यू कंसीडर A raised to power Q minus R multiplied by B raised to power
r minus p multiplied by c raised to power p minus q, ये आप कंसीडर करेंगे. दैट विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू पुट कर देंगे 1 से, दैट इज a कैपिटल R की पावर यहाँ पर p माइनस 1 है, सो ए आर की पावर p माइनस 1, आप रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करिए, और इसकी पावर q माइनस आर. तो आपने a की जगह यहाँ पर a की वैल्यू पुट किया है, ये वाली, ठीक है. सिमिलरली डॉट b की वैल्यू पुट करेंगे, a r की पावर q माइनस 1, यहाँ पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज कर लीजिए, होल पावर इज r माइनस p मल्टीप्लाइड बाई c रेज टू पावर p माइनस q, c की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज a r रेज टू पावर स्मॉल r माइनस 1, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करेंगे, की पावर p माइनस q. ओके, आफ्टर दिस वी हैव, ये पावर्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो यू हैव a रेज टू पावर q माइनस r. यहां से आप देखेंगे a रेज टू पावर r माइनस p आ जाएगा, इनको कलेक्ट कर लेते हैं a को, यहाँ a की पावर आ जाएगी p माइनस q. ओके, इसके बाद ये मल्टीप्लाई होंगे, सो r की पावर p माइनस 1, p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई q माइनस r. फिर यहां पर r की पावर आएगी q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई r माइनस p, और फिर यहां पर r की पावर आएगी स्मॉल r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई p माइनस q. ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी इक्वल टू, a बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इट विल बी q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q. ओके, p माइनस q एंड r की पावर है, बेसिस सेम है, तो r की पावर यहां पर ऐड हो जाएगी p माइनस 1 q माइनस r प्लस q माइनस 1 r माइनस p प्लस r माइनस 1 p माइनस q. दैट इज इक्वल टू, यहां पर आप देखेंगे इससे नेगेटिव से ये पॉजिटिव r कट जाएगा, माइनस p से प्लस p और माइनस q से ये q, तो a की पावर 0 विच इज 1. ओके, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये r की पावर, ये ब्रैकेट्स को खोल लेंगे, दैट इज पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर. नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्यू आर माइनस पी क्यू, यू कैन राइट माइनस आर माइनस माइनस प्लस पी. थर्ड ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू. अब यहां पर आप देखेंगे कि ये माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू से कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी आर प्लस पी आर से माइनस, और ये p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आर माइनस आर और माइनस q, तो यहाँ पर प्लस q और प्लस क्यू आर विद माइनस क्यू आर, तो सारी पावर्स कैंसिल हो गई, तो इट इज r की पावर 0. क्लियर, r की पावर 0, और यहाँ पर आप शो कर सकते हैं कि a की पावर भी यहाँ पर 0 आ रही थी, यू कैन शो इट हेयर, a की पावर 0. So it is, you can say 1 into 1 which is 1, hence shown. यही हमको शो करना था. Okay, so it is our required result. Next question. सर एक बार वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो सर एक बार बोले रिपीट करवा दो 22 वाला. हाँ देखिएगा एक बार,
दोबारा देखिएगा, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम में आता है, कैलकुलेशन काफी टीडियस है, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। देखिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, स्मॉल ए या बी को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। वो गलत है, क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल बी वहां पर उसने यूज किया है। कॉमन रेशियो आर को मानते हैं, कॉमन वो यहाँ पर आर यूज कर रहा है, तो आप कॉमन रेशियो स्मॉल आर नहीं मान सकते, तो आप ए को फर्स्ट टर्म या बी को फर्स्ट टर्म नहीं मान सकते, स्मॉल आर को कॉमन रेशियो नहीं मानते। अगर आपने किसी बच्चे ने ये मान लिया, एज्यूम कर लिए, तो आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, एग्जामिनर उसको चेक ही नहीं करेगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, स्मॉल में वो यूज कर रहा है तो आप कैपिटल में यूज करिए। लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी अंडर कंसीडरेशन। आप ये सबसे पहले करेंगे, ठीक है। इसके बाद उसने कहा पीएथ टर्म, क्यूथ टर्म एंड आरथ टर्म आर ए बी सी। तो पीएथ टर्म, क्यूथ टर्म, आरथ टर्म आर ए बी सी। अब इसमें हमने जो फार्मूला लगाया टी एन जो होता है, टी एन बराबर होता है फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। आर की पावर ये माइनस है, आर की पावर एन माइनस वन। तो ये फार्मूला यहां पर हमने यूज किया है। एन की जगह पी रख देंगे यहां पर, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। एन की जगह क्यू रख देंगे तो हमारी ये बी की वैल्यू आ जाएगी, और एन की जगह आर रख देंगे, ठीक है, स्मॉल आर ये वाला, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब जो हमको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर कर ली। यहां से हम देखेंगे ए की वैल्यू पुट की है, ए की वैल्यू यहां पर आ गई है, बी की वैल्यू यहां पर आ गई है, ठीक है, और सी की वैल्यू ये यहां पर पुट कर दी, और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में पुट किया है हमने, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। जो ये पावर थी ऊपर क्यू माइनस आर, ये अनटच्ड है यहाँ पर, आर माइनस पी पावर अनटच्ड है, और पी माइनस क्यू पावर यहाँ पर अनटच्ड है। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इस बाहर वाली पावर को अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए की पावर क्यू माइनस आर, जो आपने यहां पर लिख लिया। फिर यहां पर देखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो आप इनको आगे पीछे रख सकते हैं, कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। तो यहां पर हो जाएगा ए की पावर आर माइनस पी, वो आपने यहां रखा है। यहां से आएगा ए की पावर पी माइनस क्यू, वो यहां पर रखा है आपने, ठीक है। तो ए सारे आपने एक तरफ यहां पर ले लिए, ये ए यहां पर आ गए, ऐसे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर की पावर पी माइनस वन, तो पी माइनस वन से ये क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी माइनस वन क्यू माइनस आर। फिर यहां से आर की पावर क्यू माइनस वन है, ये आर माइनस पी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर्स मल्टीप्लाई कर ली। सिमिलरली थर्ड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में आर माइनस वन विल बी मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू। अब आप देखेंगे यहां पर ए बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर ए है और इसकी पावर्स को हमने ये ऐड कर दिया, जो कि जीरो आ गया, ठीक है, तो यहां पर लिख लिया। इसी तरह से कैपिटल आर की सारी पावर, ये कैपिटल आर मल्टीप्लीकेशन में बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इन इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास। इसमें देखेंगे सब कुछ कट गया, तो यहाँ पर जो है इस जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो आप देखेंगे कि ए की कैपिटल ए की पावर जीरो विच इज वन, कैपिटल आर की पावर जीरो विच इज वन, एंड वन इंटू वन इज वन। तो यही हमें शो करना था। आई थिंक आपको क्लियर होगा। क्लियर टू एवरीवन? yes sir. Fine. Let us move to the next question. Question number 23. Solution. If first and nth term of GP are A and B, तो यहां पर A फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं T1 फर्स्ट टर्म, और nth term, okay, Tn is given as B. And if P is the product of n terms, P is product of n terms, T1, T2, T3 up to nth term, prove that this, आपको ये प्रूव करना है, क्लियर।
तो यहां पर आप देखिए स्मॉल ए उसने फर्स्ट टर्म यूज की है, बी nth टर्म यूज की है, कॉमन रेशो आप आर मान लीजिए। सो लेट अस एज्यूम आर बी द कॉमन रेशो ऑफ जीपी अंडर कंसीडरेशन। ओके, तो अब आप यहां पर टी एन का फार्मूला लिख लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। टी एन होता है फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशो आर लिया है n-1। ये आपका टी एन का फार्मूला है, इस पर फोकस रखेंगे आप। ठीक, अब यहां पर P देखेंगे, प्रोडक्ट। P प्रोडक्ट है, T1 फर्स्ट टर्म A, T2 तो n की जगह यहां पर 2 रख दीजिए आप। तो यहां पर आप लिखेंगे A R की पावर 2 माइनस 1 1, तो ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, फिर यहां पर लिखिए T3, तो n की जगह 3 रख देंगे, A R की पावर 3 माइनस 1 2। ठीक है, 3 टर्म तक लिखेंगे। फिर इसके बाद ऐसे nth टर्म लिखेंगे, टी एन यहां पर है ही हमारा, तो A R की पावर n-1, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये n टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया। अब आप देखेंगे दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ये है A, सेकेंड टर्म ए आर की पावर 1 एंड सो ऑन। तो n टर्म्स हैं, तो यहां पर A ऐसे करके आएगा, और आप इसको एग्जाम में ऐसे करके नीचे यहां लिख देंगे n टाइम्स। ये लिखने का तरीका है, सीख लीजिए, n टाइम्स। और मल्टीप्लीकेशन में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करिए, r आएगा, फिर r की पावर 1 है, ये r की पावर 2, r की पावर 3, सो ऑन इन द लास्ट r की पावर n-1। ये मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a की पावर n, ए n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की पावर n। और यहां पर आप देखेंगे कि r की सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो r और पावर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n-1, पावर्स ऐड हो जाएंगी यहां पर, r की बेस सेम है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे सिग्मा कैपिटल N, सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है n+1/2, ये फार्मूला है। तो कैपिटल N की जगह आप ये लिखेंगे स्मॉल n-1, तो सिग्मा स्मॉल n-1 विल बी इक्वल टू n-1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये 1 कैंसल हो जाएगा, इट विल बी n-1 n/2। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो है इसकी वैल्यू आपने यहां पर निकाल ली। तो दैट इज इक्वल टू a की पावर n, r और r की पावर हो जाएगा n-1 अपॉन 2, ऐसे आप लिख देंगे। तो ये आपने p की वैल्यू निकाल ली है। अब आपको प्रूव करना है पी स्क्वायर इज ए बी की पावर n। ओके, तो पी स्क्वायर आप निकालेंगे, सो पी स्क्वायर इट इज p, सो पी स्क्वायर विच इंप्लाइज पी स्क्वायर इज ए की पावर n, r की पावर n-1/2 की होल पावर 2। ये 2 अंदर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की पावर 2n और यहां r की पावर n-1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 2 है, कैंसल हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पर नेक्स्ट स्टेप में p विच इंप्लाइज p स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर n इंटू a की पावर n, और यहां पर लिखेंगे r n-1। ओके, ऐसे लिख लेंगे। अब आप देखिए पावर n बाहर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू r की पावर n-1।
ये पावर n बाहर ले गए, ठीक है। अब आप देखिए nth टर्म हमारी क्या थी, b थी। nth टर्म b हमको दे रखा है, तो nth टर्म क्या होती है, a इंटू r की पावर n-1। तो b की वैल्यू ये आ गई, इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, इट इज अवर b। सो इट इज a इंटू b होल पावर n, हियर p स्क्वायर। तो ये ही हमें प्रूव करना था कि p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। यहां पर आप लिख सकते हैं एज tn is equal to b, which implies this, okay? So hence proved। ये हमें शो करना था, आप देखिएगा ये हमने यूज किया और ये आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किए हैं 23